Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, since yesterday, many subscribers are asking one question, sir, whether vacancies in banking and insurance will come or not this year. Now, this question is arising out of 2-3 situations that has emerged in the last week. First, one letter is there from Ministry of Finance to some general insurance companies like Oriental Insurance Company, New India Insurance Company, United Insurance Company, GIC. In that, they have mentioned some expenditure control. And one of the item covered in item K is recruitment on fresh positions in GICs. The ban will continue. That was imposed in 2017. So some candidates are misunderstanding this para. This is some existing ban on vacancies in general insurance companies for creation of fresh positions. Fresh positions means new post. Whereas in banking and insurance, the present recruitment is not creation of new post. The recruitment in banking and insurance is replacement of retirement staff. So positions are there, employees are there. The moment they retire, they are being replaced by 60% or 80%. So that clause of that letter is not applicable as far as overall recruitment is concerned. It is only applicable where some new posts are being created. Say in one bank, if they want to, in some non-life insurance company, they want to create new positions, that is other than replacement of retirement. Only on that part of vacancies that ban is applicable. That means these organizations can only maintain the present overall staff position. To understand simply, say in one organization as at 31st March 2019, 10,000 employees are there and 2,000 are retiring. So this organization can at the most take 2,000 employees. That means total strength should not go behind 10,000. But if 2,000 people are retiring or unnatural death or resignation, these can be filled. So you should not have unnecessary worry about vacancies. Yes, these are delayed. Last week, most people were expecting IBPS RRB notification. We are all awaiting SBI PO notification. We are all awaiting dates of SBI Junior Associate and RBI Assistant also. These are being delayed due to reasons that is not in control of these organizations. Like public transport is still not started. Corona cases are still high. So they may be looking for a clarity to come. So we should continue our preparation. Exams will happen and these may happen maybe on the already declared dates or delayed dates. The clarity will only come when the notifications will come. So we can't unnecessarily worry about these things. Our role is to simply prepare. So we should prepare. Another worry of most of the candidates is about age relaxation. On that also, I have already made a video few months ago and I told that there is no such news about age relaxation. If any decision will come, we will come to know and then we will be discussing that. Till that time, it is very difficult to say whether the age relaxation will come or not. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. बैंकिंग और इंश्योरेंस रिक्रूटमेंट को लेके कुछ दिनों से, खासकर कल से, काफ़ी लोगों में चिंता है कि सर एक लेटर आ गया है जो GIC को
एड्रेस्ड है, ओरिएंटल इंश्योरेंस को एड्रेस्ड है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस को एड्रेस्ड है, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी को एड्रेस्ड है, जिसमें एक के क्लॉज में 2017 में फ्रेश पोजीशन पर लगे हुए बैन को कंटिन्यू करने की बात की गई है। तो यहाँ से ही आपको पता लग रहा है वो 2017 के बैन की बात कर रहे हैं, और उसके बाद तो बैंकिंग में रिक्रूटमेंट हो रही है, LIC में भी रिक्रूटमेंट हो रही है। दैट मीन्स ये क्या है, जब हम फ्रेश पोजीशन की बात करते हैं उसका मतलब होता है एडिशनल पोस्ट को क्रिएट करना। सिंपल एग्जांपल लेने के लिए आपके लिए ये मान लीजिए एक संस्था में 31 मार्च 2019 को 10,000 कर्मचारी है, 2,000 उसमें से रिटायर हो रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन 1800 लोगों की भर्ती करती है, तो नेचुरल है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हो जाएंगे, 10,000 से कम। तो यदि ये संस्था रिटायरमेंट कम है और ज़्यादा एम्प्लॉइज ले रही है तभी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे। तो फ्रेश पोजीशंस का मतलब होता है कि जो आपकी स्टाफ स्ट्रेंथ है, मान लो 10,000 आपकी स्टाफ स्ट्रेंथ है, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इसके अंदर ही आपको रहना है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो आपकी रिटायरमेंट्स होंगी उसी को आप रिप्लेस कर सकते हो, या जो अननेचुरल डेथ्स होंगी या रेजिग्नेशंस होंगी उन्हीं को आप रिप्लेस कर सकते हैं, नई पोजीशन नहीं बना सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि रिक्रूटमेंट बंद हो गई, रिक्रूटमेंट चलती रहेगी, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट हो रही है, और जो पिछले 2-3 सालों से रिक्रूटमेंट भी हो रही है वो रिटायरमेंट की ही रिप्लेसमेंट हो रही है। अगर आप किसी भी बैंक की या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो साल दर साल घटती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ा नहीं रहा। तो इसको अननेसेसरी शब्दों को अपने दिमाग में डाल के परेशानी में आने का कोई लॉजिक नहीं है। रिक्रूटमेंट कंटिन्यू होगी, बैंकिंग में भी होगी, इंश्योरेंस में भी होगी, और काफ़ी समय से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये केवल रिटायरमेंट रिप्लेसमेंट ही होगी। कुछ बैंक 60% रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग 80% कर रहे हैं, मींस 100% रिप्लेसमेंट तो अभी भी नहीं कर रहे। जो ये वैकेंसीज आ रही हैं इसमें भी क्या हो रहा है, रिटायरमेंट ज़्यादा हो रही है मगर रिक्रूटमेंट उससे कम हो रही है। तो ये चलेगा, रिक्रूटमेंट होगा। तो ये अननेसेसरी वरी तो जो क्लॉज के है उस लेटर की उससे दूर कर लीजिए। दूसरा क्या हुआ, लोगों को वरी का रीज़न कि RRB के नोटिफिकेशन की वेट हो रही है, वो नहीं आया पिछले हफ्ते, उससे चिंता लोगों को हो गई। अब ये जो आपका डिले है, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये डिले किस लिए है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं है, कोविड की संख्या भी कंट्रोल में नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एग्ज़ाम की डेट क्या हो उसको लेके विचार विमर्श कर रहे हो, और उसी से थोड़ा सा डिले हो रहा हो। डिले का मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा। क्या उन्हीं डेट्स को होगा जो उन्होंने पहले से अनाउंस की हुई हैं, या उसके कुछ दिन बाद होगा, यही सिर्फ एक विचार का विषय है। तो कैंडिडेट के लिए क्या करना है, कैंडिडेट मीन्स हमें क्या करना है, हमें पढ़ते रहना है, क्योंकि डेट नहीं अभी आई है, सिर्फ इतना ही है। पर ये सोच लेना कि वैकेंसी नहीं आएंगी ये गलत होगा। आप अगर निराशा में चले जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। जिस सर्कुलर का उसमें रेफरेंस है वो 2017 का है, मगर 2017 के बाद तो लगातार रिक्रूटमेंट हो रही है, बैंकिंग में भी हो रही है। इस साल भी रिजल्ट आया, पिछले साल भी रिजल्ट आया था, LIC ने भी भर्ती की है पिछले साल। तो इसलिए कोई भी जो मतलब कच्ची पक्की चीज़ होती है उस पर इतनी चिंता करनी शुरू मत कर लें, और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।